Hello students, today we are going to discuss temperature dependence of resistance, means how resistance depends on temperature. So when we change the temperature for conductor, insulator and semiconductor, there is a change in the resistance. So first of all we have to discuss for the conductor. For conductor, on increasing the temperature, when we increase the temperature, then the collision between electrons and the positive ions increases. Collision between positive ions and electron increases, means collisions, frequency of collision increases, means rapidly collisions takes place. So the relaxation times decreases, and we know that resistance depends on relaxation time. R is inversely proportional to relaxation time. It means when we increase the temperature for conductor, then relaxation time decreases, and when relaxation time decreases, then resistance for the conductor increases on increasing the temperature. So that is the dependence of resistance on temperature for conductor. So you can write down for the conductor, write down that on increasing the temperature, collision between electrons and the positive ion in conductor, collision between electrons and positive ion in conductor increases, so relaxation time decreases, and we know that R equals to ml divided by ne squared torque into A. Write down that R equals to ml upon ne squared torque into A, and write in the bracket R is inversely proportional to relaxation time torque. So relaxation time decreases and resistance of conductor increases. Relaxation time decreases, so resistance of conductor increases. ओके ये तो हमने इस रिलेशन के बिहाफ पे किया. अब फाइनल स्टेटमेंट, इसी के बिहाफ पर फाइनल स्टेटमेंट क्या होने वाला है. आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज. सो हम तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज. फाइन, सो यू कैन मेंशन दैट. और कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए हम रेजिस्टेंस के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करें. देखिएगा यहाँ हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करी है. सेम वी विल डिस्कस फॉर द रेजिस्टिविटी, बिकॉज फॉर रेजिस्टिविटी दैट फॉर्मूला विल कन्वर्ट इन, बिकॉज यू नो दैट R equals to what, rho L by A. So this is the value of resistivity. So resistivity is also M by Ne squared torque. तो जो अभी हमने रेजिस्टेंस के लिए मेंशन किया, सेम आप किसके लिए मेंशन करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए. तो टॉपिक आपके यूज़ करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और उसमें आप क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज, so relaxation time decreases, and from relation resistivity, relation of that rho equals to m by Na square torque, relaxation time decreases and resistivity increases. So same topic, बस आपको रेजिस्टेंस की जगह क्या वर्ड यूज़ करना है, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की जगह आपको किसका फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करना है. बाकी सब कुछ सेम होगा. हाँ, अब हम इसका रिलेशन और निकाल रहे हैं कि कैसे हम कंडक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो एक रिलेशन हम कंडक्टर के लिए फाइंड आउट करें कैसे. वी आर टेकिंग दैट एट T equals to T1 degree centigrade, initial temperature is there, resistance is R1, and at T equals to T2 degree centigrade
देन R इज बिकम्स R2. रेजिस्टेंस पहले कितना है R1 और बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया है R2 हो गया. कितना चेंजेस आया, R1 से रेजिस्टेंस कितना हो गया है R2 हो गया है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज R2 माइनस R1. सो वी कैन राइट दैट change in resistance it is R2 minus R1. And practically when we observe this change in the resistance, so change in the resistance, it depends on initial value of resistance. Initial value of resistance is R1. So practically the change in the resistance depends on the initial value of resistance and change in the temperature. Change in the temperature. So when you note down that, then after that you can write that change in resistance. इसके बाद आप mention करें change in resistance depends on initial value of resistance. Change in resistance depends on initial value of resistance and change in temperature. Initial value of resistance and change in temperature means you can write that R2 minus R1 means change in resistance, it depending on initial value of resistance, that is R1, and R2 minus R1, it is also depending on change in temperature. So change in temperature is T2 minus T1. Initial temperature was T1 and after time T2, after time that becomes T2 ना, बाद में कितना हो गया T2 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने जैसे बोला तो R2 minus R1 it will also depends on the change in temperature. So this is the equation number 2. So equation 1 and equation 2. So from first and second you can write that from first and second R2 minus R1 proportionals to R1 into T2 minus T1, and we can also write this T2 minus T1 del T. del T की फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हम आगे में इसको मेंशन कर देंगे. del T2 minus T1 is delta T. So R2 minus R1 proportionals to R1 और ब्रैकेट में आपने क्या मेंशन कर दिया है T2 minus T1. और अगर प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करते हैं तो देयर इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज़ लाइक थोड़ा सा अल्फा को और इसको थोड़ा सा चेंज कर दें. We call it temperature coefficient of resistance, TCR, temperature coefficient of resistance. This is R1 and it is T2 minus T1. So we can write that R2 will be this is R1 plus R1 और इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द डेल टी. ओके, डेल्टा टी इसको यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, R2 इक्वल्स टू R1 कॉमन आपने लिया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. फाइन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस. This is the value of final resistance R2 and this R2 equals to R1 into 1 plus alpha delta T. और अब हमारे पास जो अल्फ़ा आया यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आया उसे हम सेपरेट करें, उसके लिए वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी कैन पुट दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd and this is equation number 4th. Now we can determine the value of, we can define the value of alpha first. So TCR के बारे में बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, हियर इसी इक्वेशन के नीचे आप मेंशन कर दें प्रोपोर्शनल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना. दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस TCR. इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TCR, टेम्परेचर coefficient of resistance. So now we have to define the temperature coefficient
of resistance, and you can write it TCR. फाइन. इस TCR को कैसे डिफाइन करें? इस TCR को डिफाइन करने के लिए हमने इसको सेपरेट किया. इसको इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड से हम इसको सेपरेट करें तो आप देखेंगे दिस इज R2 इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा R1 इंटू डेल्टा टी. R1 को इधर ले जाए तो अल्फा क्या होगा आपके लिए R2 माइनस R1 क्रॉस मल्टी. इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू डेल्टा टी. सॉल्व करके आप अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अल्फा इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू डेल्टा टी. डेफिनेशन फॉर्म करना हमें बहुत अच्छे से आता है. तो डेफिनेशन फॉर्म करने में हमें पता है कि क्या करना है. इनको क्या करना है 1 1, यानी आपको क्या करना है R1 इज ऑल्सो 1 यूनिट, डेल्टा टी ऑल्सो 1 यूनिट. सो यू कैन राइट दैट इफ R1 is 1 unit and delta t also 1 unit. हाँ, एक इसका यूनिट भी साथ ही लिख दें, ज़्यादा अच्छा लगता है. R2 माइनस R1 क्या है? रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा. डिवाइड किससे हो रहा है? R1 का मतलब ओम, और ये क्या है? टेम्परेचर. टेम्परेचर की बात की हमने. तो R2 माइनस R1 ओम डिवाइड बाय ओम. ओम से ओम कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? ओनली डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऊपर जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. तो यहीं पर साइड में मेंशन कर दीजिएगा इसका यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. ओके, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. और केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन इनवर्स. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? K पावर -1, क्योंकि केल्विन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो K पावर -1. तो अगर हमने इन सबको 1 किया, इसका डेफिनेशन फॉर्म कर रहे थे, तो R1 को क्या किया? 1 यूनिट. डेल्टा टी को आपने क्या किया? 1 यूनिट. ये दोनों जैसे ही 1 हुए तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके पास क्या आ गया है? दिस इज R2 माइनस R1. सो you can define it and you can write the definition of TCR. यही चीज़ अगर हम रजिस्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे बेटा, तो रजिस्टिविटी के लिए हमें सिर्फ सिंबल चेंज करना है. जहाँ हमने R रेजिस्टेंस के लिए लिया है वहीं रजिस्टिविटी के लिए आप क्या लेंगे? रो लेंगे. जहाँ जहाँ ये R आ रहा है उसकी जगह आप रो लिखेंगे. तो रो 2 माइनस रो 1 प्रोपोर्शनल्स टू रो 1 T2 माइनस T1. तो रजिस्टिविटी, change in the resistivity depends on the initial value of resistivity. Change in the resistivity depends on the change in the temperature. उन सबको यूज़ करते हुए तो जहाँ R आ रहा है उसको सिर्फ रजिस्टिविटी के लिए यूज़ कर लेंगे. तो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह क्या बोल देंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो वी कैन डिफाइन इट अल्फा हियर. सो अल्फा इज temperature coefficient of resistance is equals to change in resistance of unit ohm resistance wire on increasing the temperature by 1 degree centigrade या by 1 unit, by increasing the temperature by 1 unit. So TCR is temperature coefficient of resistance is equals to change in resistance of unit resistance wire. 1 ohm नहीं लगा रहे तो unit resistance wire on increasing the temperature by 1 unit. So that is the definition for the temperature coefficient of resistance. अब अगर हम अल्फा की बात करें, लिख लेंगे ना इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. TCR is equals to change in resistance of conductor unit. वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार से. Temperature coefficient of resistance is equals to change in resistance of unit resistance wire on increasing the temperature by 1 unit. Fine. अब हाँ, हम बात करते हैं कि अल्फ़ा की बात करें. देखो, आपको पता होना चाहिए कि R2 का वैल्यू अगर R1 से ग्रेटर होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है, इनिशियल वैल्यू से अगर वो इंक्रीज होता है, तो जब वो इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि दैट R2 इज़ ग्रेटर देन R1. तो R2 ग्रेटर देन R1 हुआ तो इसका मतलब अल्फ़ा कैसा होना है? पॉजिटिव होना है. अभी हमने किसकी बात की है? सिर्फ कंडक्टर की बात की है. तो कंडक्टर्स के केस में हमने देखा है
कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। इसका मतलब R2 का वैल्यू R1 से कैसा रहना है, ग्रेटर। T2 का वैल्यू तो T1 से ग्रेटर रहना ही रहना है। तो हमने कहा कि यहाँ अल्फ़ा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जितने भी हमारी मेटल्स हैं कंडक्टिंग है, उन सब के लिए अगर हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर दैट। अभी हमने सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं की। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की हम टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑन इंक्रीज, क्योंकि वो इनिशियली कैसे हैं। इंसुलेटर कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है और हमें पता है कि लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर भी कैसा होता है, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ही होता है, कोई कंडक्टिविटी शो करता नहीं है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उन्हें जो थर्मल एनर्जी मिलेगी, उस थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स में जो फ्लो होना स्टार्ट होगा, एक फ्लो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो कंडक्टिविटी पहले से क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस फॉर दैम विल डिक्रीजेस। तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब R2 का वैल्यू R1 से कैसा होगा, लेस होगा। तो उस केस में अल्फ़ा जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, R1 ग्रेटर होगा तो R2 की वैल्यू उससे लेस है, तो ये फैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने इस TCR को हमने जैसे इसके साथ ही डिस्कस किया है कंडक्टर के साथ, तो आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं क्या, ए इट इज पॉजिटिव फॉर मेटल और कंडक्टर, यानी जितने भी कंडक्टिंग हैं उन सब के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब भी यहाँ पे मेंशन कर दें। पॉजिटिव होने का मतलब है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance also increases. So you can also write that alpha is positive for metal or conductor and specify कर दें on increasing the temperature resistance of metal or conductor increases. और B हम इसका यूज करें, so alpha is negative, it is for insulator and semiconductor, दोनों के लिए आप बात करेंगे। सेमीकंडक्टर यानी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप इसको मेंशन कर रहे हैं तो यू कैन से दैट अल्फा विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रिवर्स प्रोसेस, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो यू कैन स्पेसिफाई हियर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance of insulator and semiconductor decreases। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करी। और एक और अब हमारा स्पेशल है, बहुत अच्छा और स्पेशल, उसकी बात करेंगे। अल्फ़ा यानी कि जो हमने लिया है TCR की बात कर रहे हैं, वेरी स्मॉल, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। जब बहुत कम वैल्यू का है अल्फ़ा की वैल्यू, दिस इज फॉर द एलॉयज। और आपको याद आ रहा होगा हमने मीटर ब्रिज एंड जो पोटेंशियोमीटर वायर यूज़ किया था, हमने एलॉयज को यूज़ किया था, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। तो इन यूरेका, इनको क्यों यूज़ किया था, बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मीन्स देयर इज नो dependence of resistance on temperature. Basically on changing the temperature, resistance of alloys doesn't change. So that's why we are saying that it's a very negligible dependence of resistance on temperature for alloys. So you can write that here, resistance of alloys doesn't change, or very small change on increasing the temperature. Resistance of alloys doesn't change, oblique, very small change on increasing the temperature. So this is TCR and we discuss for the conductor. ओके तो हमने कंडक्टर के लिए इसको यूज़ किया है, कंडक्टर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए आपको सीधे सीधे से मेंशन क्या करेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. सेम वी हैव टू यूज फॉर द resistivity. So in the next class we will discuss about that. So you note down that, revise it. Okay, thank you students.